Good morning, students. I Ghanshyam Diya, KV number 1 Bikaner. Today we will learn a new topic, fertilization and implantation. Before start the topic, we should know about the fertilization. The fertilization is the process in which fusion of male and female gamete. And what is the meaning of implantation? The implantation is the process in which attachment of zygote into the endometrium of the uterus. That is known as implantation. Now start in detail. Fertilization. During copulation, coitus semen is released by the penis into the vagina is called insemination. In coitus process, semen is released. That is process is known as inseminations. The motile sperm movement passes through the cervix to the vagina, cervix to uterus, and finally it reaches the junctions of isthmus and ampulla junctions. That portion is isthmus ampulla junction. The ovum release from the ovary also transported. Ovum which is formed in the ovary also transported and reach the ampulla isthmus junction. That place is the place where uh, fusion of male and female gamete take places. The fertilization only take place if both sperm and ovum reach एम्पुलराई स्टमिक जंक्शन सिमुलेटेसली एक साथ ही जब दोनों पहुंचे तभी फर्टिलाइजेशन होगा. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड fertilization. Now you can understand. Okay, now sperm penetration. The during fertilization, a sperm come in contact with zona pellucida layer of the ovum and induce change in the membrane that block the entry of additional sperm. Before start the topic, you have to know about the structure of ovum. That is the structure of ovum. In you can see that is the ovum. That is the ovums, and ovum covered by a membrane that is known as plasma membrane or uh, vitelline membranes. It is covered by another membrane then that is known as zona pellucida. Another is covered, another membrane that is known as zona pellucida, and zona pellucida is also covered by cell of corona radiata. Cell is corona radiata. So during fertilization, a sperm come in contact with zona pellucida layer of the ovum and induce change in the membrane that block the entry of additional sperm. जैसे ही फर्टिलाइजेशन में स्पर्म कांटेक्ट में आता है जोना पेलुसिडा से, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ऐसा चेंज करता है, यानी अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कि दूसरे स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाती है. इट मीन्स इट इंश्योर मोनोस्पर्मी एंड प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, यानी कि एक ही स्पर्म एंटर कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं. ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज विद वन ओम. The secretion of acrosome, you know about the in sperm acrosomes. Acrosome release a high alluronidase enzymes which dissolve corona radiata and zona pellucida and enter into the cytoplasm of ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. अब क्या होगा, स्पर्म का न्यूक्लियस ही अंदर एंटर करेगा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसोल्व करते हुए, और बाकी का जो पोर्शन है, मिडिल पीस, न्यूक्लियस, ये पीछे ही रह जाएंगे. Now, the entry of sperm into the ovum induces the ovum to complete its second meiotic division of secondary oocyte. That diagram, that portion, in that portion, you can see the entry of sperm into the ovum induces the ovum to complete its second meiotic division. आपको पता होगा कि oogenesis की प्रोसेस में सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन तब तक नहीं होता जब तक कि स्पर्म एंटर नहीं होता. जैसे ही स्पर्म एंटर होगा, मियोसिस सेकंड इज आल्सो अनइक्वल. मियोसिस जो सेकंड होगा वो भी अनइक्वल होगा. आप इसमें से देखिए
ये जो सेकेंडरी oocytes है, ये सेकेंडरी oocytes है, वो भी अनइक्वल होगा। एक छोटी सेल बन रही है पोलर बॉडी और एक बड़ी सेल बन रही है ओ। तो बड़ी सेल्स होती है उसको ओवम कहेंगे या ओटिड कहेंगे, और जो छोटी सेल्स है उसको हम क्या कहेंगे, पोलर बॉडी है। तो इस टोटल जो oogenesis प्रोसेस है उसमें तीन तो पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, एक बड़ी सेल्स बनती है जिसको हम ओवम कहेंगे, और ओवम के अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा ज्यादा होती है। The haploid nucleus of the sperm fuse with the haploid nucleus of the ovum to form a diploid zygote। अब जो haploid nucleus जो sperm का था और haploid nucleus जो ovum का था वो फ्यूज हो जाएंगे और एक diploid zygote का फॉर्मेशन होएगा। Now cleavage। cleavage starts soon after the fertilization। cleavage का मतलब होता है डिवीजन। जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके जस्ट बाद बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स होंगे और सेल्स, द जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक क्लीवेज एज इज मूव अलोंग द isthmus of the oviduct toward the uterus। यूट्रस की तरफ जाएगा। इट फॉर्म 2, 4, 8 एंड 16 डॉटर सेल कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर। अब बहुत सारी सेल्स आपको देखने को मिलेगी, ये जाइगोट है, फिर डिवीजन हुआ, फिर डिवीजन हुआ, और जब 16 तक एज होएगी तब इसमें बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। अब जो इन सेल्स को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर्स। ये बहुत सारी जो सेल्स होएगी उनको क्या कहा जाएगा, ब्लास्टोमियर। द मोरूला सॉरी द एम्ब्रियो विद 8 से 16 ब्लास्टोमियर। जब 8 से 16 तक ब्लास्टोमियर है तब इस स्टेज को नाम बोला जाता है मोरूला। The morula continues to divide and transfer into blastocyst। मोरूला में कंटिन्यूस डिवाइड होते रहेंगे और फिर ये एक स्टेज में जाएगी जिनको हम कहेंगे ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस, और फिर वो धीरे धीरे यूट्रस की तरफ मूवमेंट करेंगे। द ब्लास्टोमियर अरेंज इन एन आउटर लेयर। अब क्या होगा, ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो अरेंज होंगे और एक लेयर बना लेंगे, एक लेयर, इसको हम कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ सेल्स होएगी वो एक ग्रुप के रूप में इकट्ठी हो जाएगी। आप इस डायग्राम में देखें, उनको बोलेंगे इनर सेल मास, इनर सेल मास। और इनर सेल मास ही वही है जो कि आप था होगा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। और जो ट्रोफोब्लास्ट है वो मेम्ब्रेन बनाएगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म्स और मेसोडर्म्स। नाउ इम्प्लांटेशन। Trophoblast cell attached to the endometrium help development of placenta। Inner cell mass get differentiate into the embryo। After the attachment, the uterine cell divide rapidly and cover the blastocyst। जैसे ही ये जो ब्लास्टोसिस्ट है यूटेराइन वाल के साथ अटैच हो जाता है, चिपक जाता है, तो वो डिवाइड करके उसको ब्लास्टोसिस्ट को कवर्ड कर लेगी। ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली इम्बेडेड इन द यूटेराइन वाल, यूटेराइन एंडोमेट्रियम में कवर्ड हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, इम्प्लांटेशन। आप एक डायग्राम से देखें, सारी प्रोसेस आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। देखो ये तो ओवम है, ये स्पर्म की एंट्री है, केवल एक स्पर्म जाएगा, फिर क्लीवेज, और ये जो स्टेज आई है मोरूला। अब ये स्टेज आगे होते हुए इस जगह आप देखेंगे यूट्रस के अंदर, यहाँ इस जगह यूट्रस, जो ये स्टेज थी ब्लास्टोसिस्ट, ये इसकी दीवार के साथ अटैच हो जाएगी। ये जो स्टेज आपको दिख रही है ट्रोफोब्लास्ट, ये जो अंदर का जो पोर्शन दिख रहा है जिनको हम कहेंगे इनर सेल मास जो कि एम्ब्रियो बनाएगा, ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है यूट्रस की वाल के साथ एम्बेडेड हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन। थैंक्स।